Good morning, everyone. Now, today's lecture we start our practical number 1. Identify various components used in a hydroelectric power plant using model, chart, and video. Already in a first unit, introduction to power plant, already we understand the what is the hydraulic power plant and what is the arrangement of the hydroelectric power plant. Then the what is the selection side of hydroelectric power plant. They are given a different types of side selection, and also given the what is the advantage, what is the capacity, and what is the component. Now in practical lecture we only understand the what is the component means which types of component we are using in a hydroelectric power plant. Basically they are given some types of component means like arrangement, reservoir, dam. Okay, this is a component of hydraulic power plant. So this practical we only understand the component of hydraulic power plant with model, chart, and video. Okay, so start our first component. Okay, this is the hydraulic power plant. Okay, and they are given a different types of component. For example, water storage, dam, penstock, sugar tank, wall, nozzle, turbine. Okay, this is the component of hydroelectric power plant. Now we discuss the what is the each component and what is the work of component. Okay, the first main component of hydraulic power plant, first one is a reservoir. And what is the function of reservoir? First we understand the reservoir and its functions. Reservoir, this is a real reservoir. Okay, okay, first point is a reservoir. Now what is the function? Reservoir is provided to store the water. In hydroelectric power plant, reservoir work is only store the water in a rainy season and supply the same in a dry season. Okay, then the water from the reservoir is used to run the hydraulic turbine. Okay, water we are using in a store in a reservoir and the use of water for rotating to turbine. Then second component is a dam. Okay, second component is a this is a dam. What is the function of dam? A dam is a structure of a light built across the river. Its function to provide working head of water for power plant and increase the storage capacity of reservoir. Okay, first function is a first component is a reservoir, second one is a dam. What is the function? To store the capacity of reservoir and increase the storage of capacity, and also working head of water for the power plant. Now third component of hydraulic power plant is gate. The gate is provided for controlling of flow of water for reservoir to hydraulic turbine through penstock. It is a closed when maintenance of the system is required. Okay, आपण बघितलं आता तीन फंक्शन बघितले. फर्स्ट वन इज अ रिझर्वायर, second one is a dam and gate. Already we know the what is the function of reservoir. Reservoir आपण कशासाठी यूज करतो? स्टोर द वॉटर. ओके, ड्युरिंग द रेनी सीझन और ड्राय सीझन आपण ते रिझर्वायर असतं वॉटर स्टोरेज, त्याच्यामध्ये वॉटर स्टोर करतो. मग ते रेनी सीझन मध्ये असेल किंवा ड्राय सीझन मध्ये असेल. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ रिझर्वायर. सेकंड इज अ डॅम. तर आपल्याला जे वॉटर स्टोर करायचं असेल तर आपल्याला डॅम हे इम्पॉर्टंट असतं. मग डॅमची जे आपण वॉटरची कॅपॅसिटी किती असेल त्यानुसार तो डॅमचं आपण कन्स्ट्रक्शन करत असतो. ओके, दिस इज द डॅम कंपोनंट. अँड गेट, सपोज गेट असेल इथे, म्हणजे गेट कशासाठी? तो वॉटर फ्लो असेल, तुमचा वॉटर फ्लो टर्बाईनला देण्यासाठी काही गेट असेल. आपण बघितलं असेल की भरपूर सारे हायड्रो पॉवर प्लांट असतील, ते काही डॅम्प असतात. त्या डॅम्प मध्ये जर तो डॅम फुल जरी झाला किंवा हायड्रो पॉवर प्लांट हा स्टॉप असेल तर डॅमचे जे पाणी असेल तो पाण्याचा फ्लो अदर ठिकाणी
डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी तिथे काही गेट्स अवेलेबल केले असतात. दॅट इज द मेन पर्पज ऑफ द गेट. Then other component also given one tank, then penstock. This is the penstock. Okay, this is the penstock, and already we discussed the what is the use of penstock, what is the size of penstock, and what is the length of penstock. Okay, आपण बघितलं होतं की जे फर्स्ट युनिट होतं आपलं, त्या फर्स्ट युनिट आपण बघितलं की पेनस्टॉक, जो पेनस्टॉक असतो त्याचा यूज कशासाठी असतो? वॉटर फ्लो करण्यासाठी विथ द. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की त्याच्यामध्ये जी साईज असेल, लेंथ असेल, पण साईज पण बघितली, लेंथ बघितली, जो इथे अँगल क्रिएट केलेला आहे पेन स्टॉक मध्ये, जो अँगल बघितला तो अँगल पण आपण बघितला. इथे पण अँगल क्रिएट केलेला आहे का जो वॉटरचा फ्लो असतो त्याचा जो स्लोप असतो इन्क्लाइंड असतो. सपोज इथे इथपर्यंत पाईप स्ट्रेट आहे, तिथून इन्क्लाइंड केलेला आहे, मग तो इन्क्लाइंड केलेला जो डिग्री असेल, किती डिग्री मध्ये इन्क्लाइंड केला त्याच्यानुसार तो वॉटरचा फ्लो डिपेंड असणार आहे पेन स्टॉकचा. सपोज आपण इथे कमी डिग्री मध्ये इन्क्लाइंड केला, सपोज ह्या डायरेक्शनला इन्क्लाइंड केला, तर वॉटरचा फ्लो ऑलवेज हा मिनिमम असेल. त्यासाठी आपण स्लोप हा मॅक्झिमम घेतलाय, त्यामुळे वॉटरचा जो फ्लो असेल त्याचा फोर्स हा लार्ज असेल. दॅट इज अ पर्पज फॉर युजिंग टेकन द इन्क्लाइंड पेनस्टॉक. ओके, नाउ tank. What is the purpose of tank? Tank is a turbine suddenly decreases for the gate of water turbine suddenly close to governor action, and also the penstock is a subjected positive pressure due to the sudden decrease in the load on the turbine and to negative pressure due to sudden increase in the load. मी जे पॉइंट सांगितलं की आपण जो पेनस्टॉक आहे त्या पेनस्टॉकचा जो फ्लो असेल, तो फ्लो कशासाठी आपण तो इन्क्लाइंड पाईप घेतलेला असेल की जो प्रेशर असेल, म्हणजे जे वॉटर फ्लो होणार आहे, इथं आपण कोणतेही मोटर इथे फिट केलेली नसणार आहे, ते डायरेक्टली ते वॉटरच्या फ्लोनुसार टर्बाईनचे जो ब्लेड असतील ते रोटेट होणार आहे विदाउट मोटर. ओके, मग हे कशामुळे होणार आहे? जो पाण्याचा प्रेशर असेल, लोड असेल, त्या लोडच्या प्रेशर थ्रू तुमचे टर्बाईन हे रोटेट होणार आहे. ओके, आपण बघितलं होतं फर्स्ट युनिट मध्ये की वॉटर फ्लो असेल, वॉल ओपन केलेला असेल, वॉलचा जे कॅपॅसिटी असेल, किती कॅपॅसिटी तो ओपन केलेला असेल, 100% असेल किंवा 50% असेल, त्यानुसार तुमचे हे टर्बाईनचे ब्लेड्स हे रोटेट होतील. रोटेट झाल्यामुळे काय होणार आहे? इथे एक शाफ्ट असेल, तो शाफ्ट तुमच्या मोटरला कनेक्ट असणार आहे. टर्बाईन शाफ्ट असेल तो कनेक्ट असेल, मग त्यामुळे काय होणार आहे? तुमची जी मेकॅनिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होणार. दॅट इज द पर्पज ऑफ द टर्बाईन अँड टर्बाईन ब्लेड्स. ओके, so they are given different types of component: reservoir, dam, okay, tank, wall. This is the nozzle. आपण नोझलचा जर विचार केला, सपोज इथे नोझलची जे डिस्टन्स दिलेले हे जर आपण लार्ज घेतलं, सपोज जर इथून ओपन ठेवला नोझल, तर जो प्रेशर असणार आहे, जो वॉटरचा जो प्रेशर असणार आहे, तो पूर्णपणे या ब्लेड्सवर इम्पॅक्ट नाही करणार. ओके, आपण जर बघितलं असेल एखादी पाईप्स असेल, जेव्हा पाईपचा पूर्ण फ्लो चालतो तो जो कमी प्रमाणात असतो, ओके, क्वेश्चन केलेला आहे का व्हॉट इज द सर्क टँक. सपोज सर्क टँक यासाठी यूज करतो आपण, जर पाईप्स असेल, पाईप मधलं वॉटर जे वॉटर फ्लो होत असतं त्याच्यामध्ये जर त्याचं प्रेशर जास्त असू शकतं, किंवा आपण वॉल जर पूर्णपणे ओपन केला तर सर्क टँक मध्ये काही जे वॉटर असतं ते वॉटर फिल केलं जातं. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की जे प्रेशर असेल ते प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी तो टँक यूज केलेला असतो. ओके, आता इथे जो टँक दिलेला आहे तो डायरेक्टली त्याला व्हर्टिकल यूज केलेला आहे, पण आपण जर बघितलं की भरपूर सारे टँक्स असतात, त्याला डायरेक्टली जो टँक्स असतो तो टँक्स इथे यूज केलेला असतो किंवा इथे यूज केलेला असतो या वॉलच्या आधी. म्हणजे सपोज तुमचं लार्ज प्रमाणात जर प्रेशर असेल, वॉल पूर्ण ओपन केला, तुम्हाला प्रेशर काही कंट्रोल करण्यासाठी तो सर्क टँक असतो, तो सर्क टँक पण फिल होत असतो त्या वॉटरचं प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी, फ्लो मेंटेन करण्यासाठी. ओके, आपण बघत होतो नोझल. व्हॉट इज द नोझल? इथे सोबत नोझल दिलेले आहे, या नोझलचं आपण जर पूर्ण ओपन ठेवलं तर तो पूर्णपणे प्रेशर तिथे घेणार नाही. ओके, कारण पूर्ण ओपन ठेवलं पूर्ण प्रेशर घेणार नाही, तो प्रेशर हा कमी असेल. पण जर सपोज ह्या पेन स्टॉकला आपण त्याला सपोज कमी त्याचं जे प्रेशर असेल, इथे साईज ही कमी केली, तर साईज कमी केल्यामुळे ऑटोमॅटिकली जे प्रेशर असेल ते ऑटोमॅटिकली प्रेशर तुमचं इन्क्रीज होणार आहे. तुम्ही जर नळी बघितली असेल, पाणी असेल, आपण बघितलं की गार्डन मध्ये जेव्हा पाणी आपण स्प्रे करतो
तेव्हा पूर्णपणे जर नळीची जे असेल त्याचं जे एंड असेल ते ओपन ठेवलं तर प्रेशर हा कमी असतो, पण जेव्हा आपण तिला आपल्या बोटाने प्रेस करतो तर ऑटोमॅटिकली ती नळीचं हे प्रेशर हे इन्क्रीज होतं, म्हणजे वॉटरचा फ्लो इन्क्रीज होतो. पण त्यामुळेच इथे नोझलचा जो शेप दिलेला आहे हा कमी प्रमाणात दिला आहे, कारण की त्याचं जे प्रेशर असेल वॉटरचं ऑटोमॅटिकली ते इन्क्रीज होईल आणि त्याचा इम्पॅक्ट त्या टर्बाईन झाल्यामुळे टर्बाईनचं जे रोटेशन असेल हे मॅक्झिमम असेल किंवा लार्ज असेल. ओके, दॅट इज अ पर्पज. आपण जे हायड्रोलिक पॉवर प्लांट मध्ये बघितलं फर्स्ट युनिट मध्ये, आपण फक्त कंपोनंट बघितले. आता पेन स्टॉक झालं, पॉवर हाऊस असेल. ओके, टर्बाईन शाफ्ट नंतर पॉवर हाऊस असतं. पॉवर हाऊस मध्ये आपण बघतो की आपली इलेक्ट्रिसिटी ही कन्वर्ट केली जाते, जी एनर्जी असेल मेकॅनिकल ती इलेक्ट्रिक मध्ये कन्वर्ट करून ते आपण सबस्टेशन थ्रू इतर अदर ठिकाणी ते डीपी असेल 11 केव्ही वगैरे तिथे आपण ते डिस्ट्रीब्यूट करत असतो. आता आपण एक व्हिडिओ दिलेली ती बघूया, त्याच्यानंतर काही कंपोनंट्स पण त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेले आहे. जे एक्सपेरिमेंट असेल आपलं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हे पूर्ण स्टडी बेस एक्सपेरिमेंट, त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला प्रॅक्टिकल नंबर 1 राईट करत असताना फक्त व्हॉट इज द कंपोनंट ऑफ द हायड्रोलिक पॉवर प्लांट, त्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही कंपोनंट राईट डाऊन करायचे. टोटल ते 6-7 कंपोनंट दिलेले असतील ते राईट डाऊन करायचे, त्याची फिगर असेल ती फिगर ती ड्रॉ करायची, बस. त्याच्यामध्ये फक्त एवढेच पॉइंट असतील एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मध्ये, त्यासाठी कोणते आपल्याला प्रॅक्टिकल लॅब वगैरे यूज करायची नाहीये. ओके, हा स्टडी बेस असेल. तर कन्क्लुजन काय असेल, फॉर द एक्सपेरिमेंट वी अंडरस्टँड द व्हेरियस मेन कंपोनंट ऑफ द हायड्रोलिक पॉवर प्लांट, म्हणजे फक्त स्टडी बेस असेल की आपल्याला हायड्रोलिक पॉवर प्लांट मध्ये कोणकोणते कंपोनंट यूज करतात. ओके, तैयार करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये जो वर्ड है हाइड्रो और इलेक्ट्रिक, ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से बनाया गया है। ये जो है बेसिकली वर्ड है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब क्या है? हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब एनर्जी प्रेजेंट इन द वाटर। वाटर में जो एनर्जी होती है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट दिखाए गए हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हमें हमारा एम और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आउटपुट हमको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इनपुट हम जो दे रहे हैं वाटर एनर्जी दे रहे हैं। तो अभी वाटर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है वो हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है। यहाँ पे वाटर स्टोरेज अरेंजमेंट है, यहाँ पे डैम दिखाया गया है। डैम के कारण हम वाटर स्टोर कर सकते हैं हायर हाइट पे। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो है टरबाइन। तो बेसिक कंपोनेंट डैम और टरबाइन ये दो है। तो डैम अभी वाटर टरबाइन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पाइपलाइन। तो यहाँ से पाइपलाइन शुरू होगी और ये पाइपलाइन ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगी टरबाइन। तो ये जो पाइपलाइन है इसको टेक्निकल नेम दिया गया है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक मतलब ये पाइपलाइन है जो वाटर कैरी करता है वाटर स्टोरेज से टरबाइन हाउस तक। तो यहाँ पे पेनस्टॉक का जो मटेरियल रहता है जनरली वो स्टील रहता है, नहीं तो कंक्रीट में रहता है। कंक्रीट का एडवांटेज रहेगा कि वो रस्टिंग नहीं होगा, करोजन नहीं होगा, उसके गंज नहीं लगेगी। ओके, तो अभी लगभग 2 से 3 मीटर इसका डायमीटर रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रहेगा। 3 मीटर भी मैंने अगर कंसीडर कर दिया तो लगभग 10 फीट इसका डायमीटर रहेगा, और 10 फीट डायमीटर पाइप से ये वाटर कैरी हो जाएगा डाउन तक। अभी डाउन साइड में इसमें क्या है, यहाँ पे एक वॉल दिखाया गया है जिससे हम वाटर क्लोज और ओपन कर सकते हैं। मतलब वाटर का जो फ्लो है वो डैम से टरबाइन हाउस तक छोड़ने का है या नहीं ये डिसाइड करेगा वॉल ओपन और क्लोज से। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है नोजल। अभी नोजल क्या है? नोजल एक कन्वर्जन एरिया डिवाइस है। कन्वर्जन एरिया मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली एरिया बिगर है जिससे वाटर फ्लो हो जाता है। जैसे भी मैं फॉरवर्ड जाऊंगा तो एरिया कम होते जाएगा और यहाँ से बाहर कम एरिया वाला वाटर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब नोजल एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे मैं प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी
ज्यादा रहेगी, और इसके बाद ये जो वाटर है वो टरबाइन पे जाएगी। अभी टरबाइन क्या है? टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब इससे जो बाहर एनर्जी हमको मिलने वाली है वो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। अभी मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जो भी सॉलिड पार्ट रोटेट होता है या मूव होता है उसको हम कहते हैं कि यार इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। जनरली हम डे टू डे लाइफ में जो भी मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो रोटरी मैकेनिकल एनर्जी रहती है। जैसे कि फैन हो गया, बाइसिकल हो गया, फैन अगर रोटेट होता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है उसके पास, बाइसिकल का व्हील रोटेट होता है तो उसके पास है मैकेनिकल एनर्जी। तो हम जनरली रोटरी मैकेनिकल एनर्जी 90 to 95% एग्जांपल देखते हैं। तो इस टरबाइन से मुझे आउटपुट क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो इस टरबाइन के क्या पार्ट है देखेंगे। ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं टरबाइन ब्लेड, नहीं तो टरबाइन बकेट। तो ये टरबाइन ब्लेड कनेक्टेड है ये सर्कुलर पार्ट से। ये सर्कुलर पार्ट है रोटार, और रोटार के सेंटर को है टरबाइन शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट से मैं पावर आउटपुट लेने वाला हूं। तो ये शाफ्ट रोटेट होते रहेगा और वहां से हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट निकाल सकते हैं। अभी ये जो मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकलने वाली है ये कनेक्टेड रहेगी इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। तो अभी इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है वो जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेता है और आउटपुट क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैंने दिखाया नहीं है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और मैकेनिकल एनर्जी मैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर को दे रहा हूं और इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो ये हो गया बेसिक कंपोनेंट। यहाँ पे और एक कंपोनेंट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट हमने देखा डैम, पेनस्टॉक, वॉल्स, नोजल, टरबाइन एंड सर्ज टैंक। ये हो गए बेसिक कंपोनेंट। अभी हम इसका वर्किंग देखेंगे। अभी वर्किंग के लिए मतलब अगर ये स्टॉप कंडीशन में है और इसे मुझे चालू करने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो वॉल है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने पड़ेगा मतलब वाटर का जो फ्लो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा और वाटर यहाँ पे जनरेटर पे और टरबाइन पे जाना चाहिए। तो मैं ये एनिमेशन से आपको दिखाता हूँ। सपोज ये जो वॉल है मैं ओपन कर रहा हूँ मतलब यहाँ का क्लोज पोजिशन हटा रहा हूँ और वो हटाने के बाद क्या होगा? वाटर का फ्लो चालू होगा। यहाँ पे वाटर का फ्लो है और ये वाटर का जो फ्लो है नोजल क्या करेगा? नोजल इसको वाटर जेट में कन्वर्ट करेगा और ये वाटर जेट यहाँ पे इंपैक्ट देगा ब्लेड पे। जब ब्लेड पे इंपैक्ट होगा तो ब्लेड रोटेट होगा और ब्लेड कनेक्टेड है रोटार को, तो रोटार रोटेट होगा और रोटार रोटेट होने के कारण शाफ्ट भी रोटेट होगा और हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पे हम बहुत सारे एनर्जी कन्वर्जन देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिखा है मैंने काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिखाया है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। ये कैसे होता है देखेंगे। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। तो ये जो वाटर स्टोरेज है हायर हाइट पे है टरबाइन हाउस। तो एज ये हायर हाइट पे है तो इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी मैं वॉल ओपन करता हूँ तो वाटर बहने लगेगा और ये वाटर जब नीचे आएगा और नोजल से बाहर आ जाएगा ये पानी। तो नोजल से बाहर आने के बाद इसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी रहेगी मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत सारी रहेगी और इसकी वेलोसिटी बहुत सारी होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो नोजल में क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी नोजल और पेनस्टॉक में क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी जो पानी की है वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अभी ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? इंपैक्ट देती है ब्लेड पे। ब्लेड रोटेट होता है और रनर रोटेट होता है और शाफ्ट रोटेट होता है। शाफ्ट रोटेट होता है मतलब शाफ्ट के पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है। तो मैकेनिकल एनर्जी है। ये मैकेनिकल एनर्जी मैं जनरेटर को दूंगा और जनरेटर को देने के बाद यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक दिखाया है। जनरेटर को देने के बाद मेरे पास आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो गया? पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। वही यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है कि पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ये एनर्जी दिखाए गए हैं। तो अभी ये तो हो गया वर्किंग
अभी यहाँ पे सर्ज टैंक का क्या फंक्शन है वो देखेंगे। जब भी मुझे ट्रांस कर दूंगा तो उसके पहले वाटर तो बहते आ रहा था, बहुत सारा बड़ा डायमीटर पाइप से बहते आ रहा था, और मैंने यहाँ पे सडनली क्लोज कर दिया। जब मैं वॉल सडनली क्लोज करता हूँ फिनोमेना है कि वाटर की वजह से क्या होता, बहुत सारा बड़ा डायमीटर पाइप से बहते आ रहा था, और मैंने यहाँ पे सडनली क्लोज कर दिया। जब मैं वॉल सडनली क्लोज करता हूँ और वाटर रश कर रहा है, मतलब फोर्स दे रहा है नीचे आने के लिए, उस वक्त इस एरिया में, मतलब लगभग इस एरिया में पाइप के अंदर के बहुत सारा प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे पाइप बस्ट भी हो सकता है। तो ये जो फिनोमेना है कि वाटर की वजह से पाइप बस्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर इफेक्ट। तो वाटर हैमर इफेक्ट के कारण पाइप बस्ट हो सकता है। अगर मुझे ये अवॉइड करने का है तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या है? सर्ज टैंक सिंपल टैंक है जो पेनस्टॉक को कनेक्टेड है। तो इसके कारण क्या होगा, वाटर जो रश कर रहा था, नीचे प्रेशर दे रहा था, और यहाँ पे जगह नहीं थी वाटर अकोमोडेट होने के लिए, तो ये जो वाटर है ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे अकोमोडेट होगा। यहाँ पे अकोमोडेट होने के कारण यहाँ का जो प्रेशर है कम हो जाएगा। वीडियो में एनिमेशन दिखाया है कि वाटर ऊपर जा रहा है, वाटर ऊपर जाने के कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने के कारण मैं बर्स्टिंग ऑफ पाइपलाइन अवॉइड कर सकता हूँ। तो ये तो फंक्शन हो गया सर्ज टैंक का। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क कैसे करना है। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है कि नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो यहाँ पे अगर हम मैं कंपेयर करूंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दूसरे पावर प्लांट से, जैसे डीजल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, वहां पे मैं फ्यूल यूज करता हूँ, मतलब डीजल पेट्रोल फ्यूल यूज करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं कौन सा भी फ्यूल नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ वाटर। तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब यह जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। थर्मल पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे तीसरा एडवांटेज है वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेस एज वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं फ्यूल नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या है, बहुत कम है। ये नेक्स्ट एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिवली लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड हैज लॉन्गर लाइफ। इसका मेंटेनेंस कम है और लाइफ भी बहुत बड़ा है। सर्व्स अदर पर्पस टू सच एज इरिगेशन। मतलब जो भी मैं वाटर यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो सेम वाटर में यूज कर सकता हूँ इरिगेशन के लिए, मतलब फार्मिंग के लिए, खेती के लिए यूज कर सकता हूँ। दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज मोर। रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक बार मैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट तैयार कर दूंगा तो ये 25 साल 50 साल 100 साल कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका लाइफ बहुत बड़ा है। और लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग प्लांट। मतलब नंबर ऑफ वर्कर जो मुझे लगने वाले हैं बहुत कम लगेंगे। ये तो हो गए बहुत सारे एडवांटेजेस हाइड्रोलिक पावर प्लांट के। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज में वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो अभी मुझे यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और इसका साइज और शेप बहुत बड़ा है, तो कैपिटल कॉस्ट जो लगने वाली है वो
बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दो कॉस्ट है, एक तो कैपिटल कॉस्ट है, एक रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट बहुत कम है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, लेकिन कैपिटल कॉस्ट बहुत बड़े है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक आर लोकेटेड इन हिली एरिया which are quite away from consumer, मतलब अभी of hydropower plants are reservoir, dam, control gate, powerhouse, turbine, generator, transformer, power lines, intake, penstock, outflow. Water reservoir is the place in which water is stored behind the dam located at higher level in the dam structure. The height of water in the reservoir decides how much potential energy the water possesses. The higher the height of the water, the more its potential energy. The high position of water in the reservoir also enables it to move downwards effortlessly. Dam is a structure that holds back the water, which is in the reservoir. It is constructed on a water resource that has abundant quantity of water over the year. It is constructed at a location where the water resource is sufficient to obtain the maximum possible potential energy. The transformer inside the powerhouse takes the AC and converts it to higher voltage current. Out of every power plant come 4 wires, 3 phases of power being produced simultaneously, and a neutral or ground common to all 3 phases. As the turbine blades turn, the shaft rotation inside the generator will produce magnetic field, which is converted into electricity by electromagnetic field induction, producing alternating current. The water strikes and turns the large blades of a turbine, which is attached to a generator above it by way of a shaft. The type of turbine used in the hydroelectric power plant depends on the height of the reservoir, the quantity of water, and the total power generation capacity. The penstock is a long pipe that carries the water flowing from the reservoir towards the power generation unit. Water flowing possesses kinetic and potential energy. Water flow is controlled by the gates on the intake. The major items which the total amount of power generation depends on are the height of water reservoir and the amount of water flowing through the penstock. The water released and controlled through these gates called control gates. When the control gates are open, the water flows due to gravity into the penstock and then towards the turbines. Water flowing through these gates possesses both of the potential as well as the kinetic energy. Today we will discuss about what are the and has a gate opening